بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دھابے جی کے خوبصورت کھجوروں کے باغات میں موجود ہیں، جو کہ دھابے جی پکنک پوائنٹ کہلاتا ہے۔ مگر آج ہماری منزل دھابے جی پکنک پوائنٹ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ آج ہم مٹھی اور نگر پارکر کا سفر کر رہے ہیں، تو یہاں سے ہم تھٹا سے ہوتے ہوئے مٹھی اور نگر پارکر کی طرف جائیں گے۔ تو آئیے آج آپ کو اس خوبصورت سفر پر لیے چلتے ہیں۔ ہماری منزل آج مٹھی ہے اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بارش کے بعد اس جگہ میں کیسی تبدیلی آئی ہے، اور یہ جگہ جو ریگستان تھا آج کس طرح سے ایک خوبصورت ہرے بھرے میدانوں میں اور پہاڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو آج آپ کو لیے چلتے ہیں مٹھی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ مٹھی کراچی سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے عمرکوٹ، میرپور خاص اور بدین کی جانب سے راستے آتے ہیں۔ کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبوں کی وجہ سے کراچی سے مٹھی تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ آپ قومی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے مکلی سے سجاول اور وہاں سے بدین کے بعد تھر کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ تھر میں قدم رکھنے کے لیے 3 مختلف دروازوں سے داخل ہونا پڑتا ہے۔ نوکوٹ قلعہ، عمرکوٹ گیٹ اور باب بے نظیر۔ لیکن جہاں سے بھی مٹھی میں داخل ہوں گے، کشادہ سڑکیں اور سرسبز ماحول اور فرحت بخش فضا آپ کا استقبال کرے گی۔ کراچی سے تھر تک تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بائی پاس بنائے گئے ہیں، جن پر سفر کر کے کراچی سے مٹھی تک 5 سے 6 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ تالپور حکمرانوں نے گجرات اور راجستھان سے بیرونی حملہ آوروں اور ڈاکوؤں پر نظر رکھنے کے لیے اس شاہراہ پر ایک چیک پوسٹ تعمیر کرائی تھی۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھنڈر بن گئی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل مٹھی ریتیلے ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے کی صورت میں قائم تھا۔ یہ ٹیلے ابھی بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑے ٹیلے کو گڈی بھت کہا جاتا ہے، جہاں ایک چبوترا بھی بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ تھر پارکر کا خوبصورت تفریحی مقام بن چکا ہے۔ مٹھی شہر ایک خاتون کے نام سے موسوم ہے، جس کے متعلق سندھ کے ممتاز تاریخ داں رام چند راٹھور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مٹھا بائی نامی عورت کا تعلق بجیر ذات سے تھا، جو رفاع عامہ کے کاموں کی وجہ سے مشہور تھی۔ وسیع و عریض علاقے پر پھیلا ہوا فطرت کا اوپن میوزیم صحرائے تھر اپنی جداگانہ شناخت رکھتا ہے۔ 3000 کے قریب دیہات، جہاں خوبصورت روایات، محبت و سادگی کی بہترین مثالیں ملتی ہیں، جبکہ اس کا صدر مقام مٹھی محبتوں اور مذہبی رواداری کی وجہ سے معروف ہے، جو تھر کے ماتھے کا جھومر کہلاتا ہے۔ آج اس مٹھی میں ہمارا استقبال خوبصورت موروں نے کیا، جو کہ یہاں چاروں طرف موجود ہیں، اور آپ بآسانی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ اور یہ مور اس بارش کے بعد اپنی اور اس علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ مٹھا بائی نامی خاتون، جن کے نام پر اس جگہ کا نام مٹھی رکھا گیا، اس نے رفاع عامہ کے کاموں میں سے ایک خاص کام ایک کنواں تعمیر کرایا تھا، جس کے پانی سے ریگستانی علاقوں سے سفر کر کے آنے والے مسافر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ یہ شہر قدیم دور سے ہی امن و آشتی کا گہوارہ ہے، جہاں ہندو اور مسلمان مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے ساتھ صدیوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔
शहर में मुसलमानों की दर्जनों दरगाहों के मुंतज़मीन हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि मुसलमान भी उनकी मजहबी रिवायात का ख्याल रखते हैं। इन खूबसूरत मनाजिर से गुज़रते हुए कब ये सफ़र ख़त्म हुआ और हम मिट्टी शहर पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ पर हमने अपना क़याम STDC की रिज़ॉर्ट में किया और इस वक्त हम गिड्डी भिट पर मौजूद हैं, जो कि इस इलाके का बुलंद तरीन टीला है, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो। मिट्टी की सुबह इंतहाई खुशगवार थी और मौसम भी हल्का हल्का सा ठंडा था। चुनाचे हम सुबह सूरज निकलने का मंज़र हमने अपने रिज़ॉर्ट से देखा, जो कि मारवी रिज़ॉर्ट के नाम से मिट्टी में मौजूद है। और यहाँ क़याम बहुत आरामदेह रहा हमारा और हमारी सुबह यहाँ पर बहुत खुशगवार हुई। इसके बाद हम यहाँ से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। उससे पहले हम आपको थोड़े यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरा और आरामदेह ये मारवी रिज़ॉर्ट है। अगर आप मिट्टी आएँ तो यकीनन ये जगह आपके क़याम के लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। चुनाचे यहाँ से हम सुबह अपनी सैर का आगाज़ करते हैं। तो आइए चलें। किसी ज़माने में मिट्टी को नीम का शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में नीम के दरख्त लगे हुए थे। यहाँ एक हिंदू बुज़ुर्ग संत नेतुराम का आश्रम है। रिवायत है कि थर में कहत के ज़माने में संत नेतुराम चावल पकवा कर यहाँ से गुज़रने वाले मुसाफिरों को खिलाते थे। ये सिलसिला उनकी मौत के बाद भी जारी है। उनके आश्रम में इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों की खुराक और पानी का भी इंतज़ाम होता है। मिट्टी में आमतौर पर कुएं से पानी हासिल किया जाता था। पानी खींचने के लिए गधे, ऊँट या बैल का इस्तेमाल होता था। कुएं से पानी निकालने के फ़राइज़ मर्द अंजाम देते थे, जबकि सरों पर मटके रख कर ख़वातीन घरों तक पानी ले जाती थी। वक्त गुज़रने के साथ कई देहात में अब ट्यूबवेल लग गए हैं, जबकि मिट्टी शहर के करीब ही हुकूमत की जानिब से RO प्लांट लगाया गया है, जो रोज़ाना हज़ारों गैलन मीठा पानी फराहम करता है। पाक ओसिस भी एक ऐसा RO प्लांट है जो यहाँ के बासियों को मीठा पानी फराहम करता है। ट्यूबवेल और RO प्लांट की सहूलतों के बाद सरों पर पानी के 2 से 3 मटके रख कर चलने वाली ख़वातीन अब बहुत कम नज़र आती हैं। मगर जिन इलाकों में ये प्लांट्स नहीं है, वहाँ आज भी लोग मीलों पैदल सफ़र करके दूर दराज के इलाकों से पानी भर के लाते हैं, जिसका एक मंज़र आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी के गैलन गधों पर रख कर पानी के लिए RO प्लांट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से ये पानी लेकर आते हैं।
मिट्टी के रिवायती खानों में पापड़ और थाल में पेश की जाने वाली चटनियाँ, मखसूस तर्ज से बनी हुई सब्जियाँ मुनफरिद जायका रखती हैं। शादी ब्याह में रिवायती पकवानों के बजाय अनवा अक़साम की मिठाइयाँ और सब्जियाँ पेश की जाती हैं। होटलों में भी लजीज खाने दस्तयाब होते हैं, लेकिन हिंदू बिरादरी के लोग मजहबी पाबंदियों की वजह से गोश्त नहीं खाते, इसलिए शहरों में वेजिटेरियन होटल भी मौजूद हैं, जहाँ के खानों में घर जैसा जायका होता है। पीले रंग की बोरानी जो सिर्फ मिट्टी में ही बनती है, जो ना तो मीठी होती है और ना फीकी, बल्कि इसका मुनफरिद जायका होता है, यह शहर की मखसूस सौगात है। थर में लोगों की अक्सरियत इग्लू नुमा कच्चे घरों में रहती है, जिनकी छतें घास फूस से बनी हुई होती हैं। इन्हें छंवरे कहा जाता है। ये घर जिस्म को झुलसाने वाली गर्म हवाओं में भी ठंडे रहते हैं। साल 2 साल के बाद उन पर ताज़ा घास लगाई जाती है। हिंदू और मुसलमानों के छंवरे दूर से शनाख्त किए जा सकते हैं। जिस छंवरे की छत के ऊपर चोंच बनी हो वो हिंदुओं का छंवरा होता है, और जिस पर चोंच ना बनी हो वो मुसलमान का होता है। मगर यहाँ ऐसे छंवरे भी हैं जिनकी चोंच तो है, लेकिन उनमें मुसलमान रहते हैं। उनके बारे में मालूम हुआ कि उनमें रहाइश पजीर अफराद पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन झोपड़ों के अलावा सीमेंट और मिट्टी से बने हुए कमरे भी हैं, जिन्हें लांडी कहा जाता है। मिट्टी के दही इलाकों में रहने वाले लोग सदियों कदीम समाजी रिवायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर गांव में आपको छंवरे मिलेंगे। एक अहाते में 3 से 4 छंवरे होते हैं, जिनके आगे छोटा सा आंगन, चंद बकरियां या ऊँट होते हैं, जो उनकी कुल कायनात है। थरी बाशिंदे ख़ुद को शहर से ज़्यादा गांव में महफूज और पुरसकून महसूस करते हैं।